Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. So, Assalamu alaikum. This is Misbah Sajid, and I welcome you all to my channel, Taaleem for Everyone. I welcome you all to my Computer Science for Grade 10 Karachi Board Lecture Series. Now, in this video, we are going to see linear data structure from non-primitive data structures. In previous video, I have already discussed in detail what is basically primitive data structure and what is non-primitive data structure. So today we are going to see linear data structure, type of non-primitive data structure in detail. So let's begin. And if you are using this textbook, so you may find this topic section 1.4 data structure on page 12 of chapter 1. So here it's classification of data structure. Um, mm, this figure we have seen in my previous video as well. You people have seen most probably if you are watching my video. So data structure are divided into two types: primitive data structure and non-primitive data structure. Primitive data structure divided into four types, not exactly four, you can say that six: float, integer, character, boolean, double, and string. Non-primitive data structure, linear data structure, non-linear data structure, arrays, linked lists, stacks, queues, trees, and graphs. Okay, and linear data structure basically are divided into these four, but we are not going to see linked list because it is not included in your textbook. So we will see only arrays, stacks, and queues in detail. So let's begin today's lecture. Linear data structure. So what is basically linear data structure? In linear data structure, data elements are arranged in sequential order, and each of the element is connected to its previous and next elements. Means के what is linear data structure? Basically क्या होता है linear data structure में कि जो भी elements होते हैं वो sequence form में जो है arrange होते हैं, या तो top to low या low to top you can say, or you can say left to right, right to लेफ्ट की फॉर्म में जो है कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देने की मैं आपको कोशिश करती हूँ. If you see there are four blocks, and in every block it contains one element like 1 4 7 10. If you see this is 4, so मुझे 4 के लेफ्ट एंड राइट पे दोनों जो नंबर हैं वो पता होना चाहिए कि क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल 4 से पहले 1 है, 4 के बाद 7 है, और if you see the difference between 1 and 4 is you can say that previous number and present number is 3. So 4 minus 1 is 3 and 7 minus 4 is 3. So it means that कि 4 जो है 4 से पहले कितना डिफरेंस है कि 1 आया 3 डिफरेंस है, 4 के बाद डेफिनेटली कितना डिफरेंस होगा तो 7 आया 3. ठीक है, सो लाइक दिस, इस तरीके से जो 4 है वो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नंबर से जो है कनेक्टेड है. So this structure helps to convert a linear data structure in a single level and in a single run. बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जब होता है वो हमें ये हेल्प करता है कि जो भी उनका जो डेटा है वो बेसिकली सिंगल लेवल और सिंगल रन में ही जो है रन हो जाता है. मीन्स के फौरन एक ही सीक्वेंस में जो है रन हो जाएगा. अगर ये ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट, ये अगर इस तरीके से होता कि एक ब्लॉक यहाँ होता, एक यहाँ होता, एक फॉर एग्जांपल यहाँ होता, तो इसको पहले रन जो है 2 या 3 दफा करना पड़ता. फॉर एग्जांपल पहले ये यहाँ पे आता, फिर ये यहाँ पे आता, या पहले ये यहाँ पे आता या ये यहाँ आता. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है. अब उसे पहले देखना होगा कि वो पहले कहाँ जाए. डेफिनेटली 3 का डिफरेंस रखना है हमने, तो 1 से 4 पे आएगा, फिर 4 जो है 7 पे जाएगा. इस तरीके से जो रन होगा मीन्स कि लेवल्स चेंज होते रहेंगे. यहाँ पे जबकि लेवल्स चेंज नहीं होंगे, सिंगल एक ही लाइन में जो है गो थ्रू हो जाएगा. ओके, रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसलिए जो है हेल्पफुल है. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट एफिशिएंट इन मेमोरी. 1 मिनट.
helps to convert a linear data structure in a single level and a single run. यहाँ तक हो गया. Next is they are easy to implement as computer memory is also in a sequential form. इनको हम इजीली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी जो है आपकी वो भी सिक्वेंशनल फॉर्म में ही है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इजी टू we can say that implement linear data structure. But the fact is that linear data structure are not efficient in memory utilization. Why is it so? क्योंकि linear data structure जो है वन टाइम एक ही जो है यू कैन से दैट टाइप का डेटा रखती है. लाइक अगर ये इफ यू सी इफ इट इज इंटीजर सो ये इंटीजर ही रहेगा. ठीक है, इन फॉर एग्जांपल ये 7 है तो ये 1 4 इंटीजर का है, 7 भी इंटीजर होगा. अगर मैं यहाँ पे फ्लोट कर देती हूँ फॉर एग्जांपल तो वो फ्लोट जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा. मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बता देती हूँ कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. अगर मैं 7.5 कर दूं सो दिस इज बेसिकली फ्लोट या डबल यू कैन से दैट. ठीक है, टू डिफरेंट टाइप्स को जो है डेटा को जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है कैरी नहीं कर सकता. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर ये जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, अगर मेरे पास 2 एलिमेंट इंटीजर हैं बाकी फ्लोट हैं तो वो फ्लोट वहां पे नहीं ले सकता. तो इसका मतलब स्पेस का थोड़ा सा इश्यू होता है. अगर स्पेस एम्प्टी है कोई और इंटीजर नहीं है हमारे पास लेकिन जो है डेटा फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है या डबल है या कोई और सा डेटा है तो वो वहां पे नहीं आ सकता. तो इट मीन्स दैट के स्पेस खाली जाएगी. मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाई इज इट सो? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट एफिशिएंट इन मेमोरी यूटिलाइजेशन. लाइक memory utilization is ineffective in arrays. Why we are saying that arrays? क्योंकि you can say that arrays falls in linear data structure. For example, if the array size is 5 and contains only 2 elements, the rest of the space will be wasted. Means कि अगर array का size फॉर एग्जाम्पल 5 है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स है. सो मीन्स दैट के एरे का साइज जो है वो 5 है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास करेक्टर आ रहा है AZ. तो डेफिनेटली और कोई भी नहीं है आपके पास करेक्टर तो वो जो आगे 3 ब्लॉक्स जो होंगे स्पेस जो होगी वो वेस्ट जाएगी, वो एम्प्टी रहेगी. क्योंकि ना ही हम जो है यहाँ पे इंटीजर को ही पुट कर सकते हैं ना ही जो है हम फ्लोट ना ही जो है हम स्ट्रिंग. सिर्फ एक ही डेटा को जो है ये सपोर्ट करता है. ठीक है, तो ये एक फॉल्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का और एरे में ही ये फॉल्ट आता है. ठीक है, और एरे यू कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ये दिए. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे एरे को. So linear data structure are not efficient in memory utilization. Why? Because memory utilization is ineffective in arrays. आप यहाँ पे linear data structure भी लिख सकते हैं. For example, if the array size is 5 and contains only 2 elements, the rest of the space will be wasted. और इसकी example मैंने ये यहाँ पे दे दी ये वाली. ठीक है, example of linear data structure are stack, queue and array etc. ठीक है, etc means linked list, but we are not going to see that topic. Okay, so let's move forward. Here is stack. Stack is basically a linear data structure which follows a particular order to perform different operation. Items may be added or removed on the at the top of a stack. The order may be LIFO, means last in first out, or FILO, first in last out. The data which is placed first is removed and last, and which is placed last is removed first. Means if you see this, okay, जो लास्ट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है प्लेस किया जाता है और आइटम्स या जो भी होंगे हमारे पास वो ऐड या जो रिमूव करने होंगे वो जो टॉप पे जो सबसे पहले होगा. फॉर एग्जांपल आप इसको कंसीडर कर सकते हो, मैंने इसको पुश किया मीन्स कि ये आ गया तो ये सबसे पहले होगा. डेफिनेटली सबसे पहले होगा तो मैं इसी को ही सबसे पहले रिमूव कर सकती हूँ. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है द ऑर्डर में बी लीव लास्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब कि जो सबसे बाद में डाला जाएगा पुट किया जाएगा हमारे लेवल पे जो भी चीज है वो जो है सबसे पहले ही रिमूव की जाएगी. इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है मैं ऐसे देती हूँ. फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट दिस इज
पराठास, ओके, इतने सारे जो है पराठास हैं। तो जो सब टॉप पे जो पराठा होगा, जो सबसे लास्ट में रखा जाएगा, वो सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो सबसे पहले रखा था वो सबसे लास्ट में मिलेगा। ठीक है, या यू कैन से दैट के जो है यूं कह लेते हैं, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कि बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल बुक 1, बुक 2, बुक 3। ठीक है, ये एक टेबल पे रखी हुई है, सही है। तो सबसे पहले बुक मैंने ये रखी थी फर्स्ट इन, और इसी को मैं सबसे बाद में निकालूंगी लास्ट आउट। ठीक है, तो और जो सबसे लास्ट में रखी थी, ठीक है, लास्ट इन, और उसी को मैं सबसे पहले निकालूंगी। तो स्टैक जो है ये कॉन्सेप्ट जो है यूज करता है, या तो आप इसको लीफो बोल लो या फिर आप फीलो बोल लो, मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट। इट मीन्स दैट द डेटा विच इज प्लेस्ड फर्स्ट इज रिमूव इन लास्ट, एंड विच इज प्लेस्ड लास्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें जो है और कोई जो है टर्मिनोलॉजीज हैं समझाने वाली। इट इज क्वाइट मच इजी। वी कैन नॉट रिमूव डेटा फ्रॉम द बॉटम और मिडल। हम बॉटम या मिडल से जो है यू कैन से दैट कि डेटा को रिमूव नहीं कर सकते, या जो भी मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दी उसको नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि जो है फिर ये एक यू कैन से दैट एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि कोई चीज खराब ना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग किचन में जब भी आप प्लेट्स रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं, लाइक प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5। अगर फॉर एग्जांपल उल्टी करके रख रहे हैं आफ्टर वॉशिंग यूटेंसिल्स, तो सबसे पहले आपने जो लास्ट में रखी होगी वही आप लेंगे, ना कि आपने जो सबसे पहले रखी होगी वो लेंगे। अगर वो ले लें तो एक जो है यू कैन से दैट खतरा होता है कि जो है ये ना हो प्लेटें कोई गिर जाए या टूट जाए। ठीक है, so examples of a stack are plates that are stacked or put over one another in the canteen, you can say that, or in your kitchen. The plate which is at the top most is the first one to be removed, and the plate which is placed at the bottom most position at the remove लास्ट, मीन्स कि जो सबसे लास्ट में जो होती है वो जो है बिल्कुल एंड में जो है निकाली जाती है। द प्लेट विच इज एट द टॉप मोस्ट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव, एंड द प्लेट विच इज प्लेस एट द बॉटम most position is the one to be removed at the last. Okay, यहाँ से एक पॉइंट जो है मिस हो गया है, सॉरी। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, the plate which is at the top most is the first one to be removed, and the plate which is placed at the bottom most is the last one to be removed. Okay, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा ये चीज आपको, कि आगे चलते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करना है अभी। ना नेक्स्ट इज कुछ टर्म्स हैं इसके लिए, लाइक ऐड और जो हम रिमूव कर रहे हैं। तो द टर्म पुश इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक, मींस कि जो भी चीज हम ऐड कर रहे हैं दैट इज उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पुश की। ओके, एंड द पॉप इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, और रिमूव करने के लिए पॉप। इंसर्शन एंड रिमूवल कैन बी डन एट वन एंड कॉल्ड टॉप, मीन्स कि जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट या रिमूव कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड से होता है, जो कि टॉप लेवल है। स्टैक इज इन ओवरफ्लो स्टेट व्हेन इट इज कंप्लीटली फुल। स्टैक कब ओवरफ्लो होगा? जब आपका पूरा स्टैक जो है फुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें मुझे बुक्स रखनी है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो, दिस इज अ स्टैक ऑफ बुक्स। ठीक है, ठीक है, मैंने बुक 1 रखी, बुक 2, बुक 3, बुक 4। ठीक है, सही, बुक 4। नाउ बुक 4 के बाद मेरा स्टैक फुल हो गया, सो अब मेरा स्टैक जो है ओवरफ्लो है। ठीक है, अब मैं कोई और एक्स्ट्रा बुक नहीं ऐड कर सकती। ओके,
stack is in overflow state when it is completely full. Okay, if my stack or carton, you can say that, is empty, okay, and if and is in underflow state if it is completely empty. In overflow state we cannot add any book, and in an, or you can say that an atom, if we talk about stack in computer terminologies, we cannot add any item in the stack, and in underflow state we cannot remove any item from the stack. Okay, so I hope so स्टेक से रिलेटेड जो है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और जो पीछे एक लाइन जो है मिस थी थोड़ा बहुत वर्डिंग्स, वो मैंने जो है लिखवा दिया। आई होप सो ये क्लियर होगा अब आप लोगों को। ओके, सो स्टेक इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज क्यू. Queue is a linear data structure which follows a particular order in which operations are performed in first in first out method. वहां पे क्या था, last in first out, ओके, या फर्स्ट एंड लास्ट आउट। यहाँ पे क्यू जो है एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो मेथड को, ऑपरेशन को जो है फॉलो करता है। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा पहले निकलेगा, आउट होगा, which means that the element inserted first will be removed first. Example of a queue is any queue of students in a school or people in a cinema where one who comes first gets the ticket first. For example, if you see over here, this is, you can say that real life example, you can consider that ये आइसक्रीम शॉप है, यहाँ पे जो है क्यू है, डिफरेंट पीपल्स की जो है क्यू है, जो सबसे पहले लगा होगा उसी को सबसे पहले आइसक्रीम मिली होगी, जो सबसे लास्ट में लगेगा उसको लास्ट में मिलेगी। मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, तो इसी तरीके से यू कैन से दैट कि जो है ये एक समझ सकते हैं आप कि जो है एक लाइन है, ठीक है, लास्ट है आप इंटर हो गए, ठीक है, ये बैक है, दिस इज फ्रंट फ्रंट, और फ्रंट से जो है आप आउट हो गए, ठीक है। तो इट मींस दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। ओके, सो इसकी और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप एनआईसी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, या यू कैन से दैट कि बैंक आप कोई फीस वगैरह जमा कराने जा रहे हैं, वहां पे लाइन में लगे हुए, सबसे पहले लगेंगे, सबसे पहले आप जो है आउट होंगे, अपने काम से फ्री हो जाएंगे, लास्ट में लगेंगे, लास्ट में आउट होंगे। ओके, तो आई होप सो यहाँ तक जो है क्लियर होगा। यहाँ पे है कि डिलीशन टेक प्लेस एट वन एंड, फ्रंट और हेड, एंड इंसर्शन टेक्स प्लेस ओनली एट द अदर एंड कॉल्ड रियर और टेल। मीन्स कि यहाँ पे इंसर्ट कब कैसे होता है, एलिमेंट कहाँ से और डिलीट कहाँ से होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक, यू कैन से दैट कि जो है ये बैक है और ये फ्रंट है, तो जो डिलीट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो फ्रंट से होता है, या फ्रंट को आप हेड भी कह रहे हैं, ठीक है, और जो इंसर्ट होता है एलिमेंट वो बैक से होता है, बैक को आप रियर और टेल भी कह सकते हैं, ठीक है। Once a new element is inserted in the queue, it cannot be removed until all the element inserted before it in the queue are removed. मीन्स कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है इंसर्ट हमने किया है क्यू में, तो वो उस वक्त तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक उससे पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्यू से रिमूव ना हो जाए। द प्रोसेस टू एड एन एलिमेंट इनटू क्यू इज कॉल्ड एज एन क्यू। ओके, जैसे कि वहां पे जो है स्टैक में जिन जिन एलिमेंट्स को हम ऐड करा रहे थे उसको हम कह रहे थे पुश, यहाँ पे एन क्यू, एंड द प्रोसेस टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, वहां पे जो है पॉप कह रहे थे, यहाँ पे डी क्यू कह रहे हैं। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक जो है आप लोगों को क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी सो यू मे कमेंट योर क्यूरी एनी टाइम, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम एज सून एज पॉसिबल। क्यू एंड stack both are most basic topic from the linear data structure. Okay, okay, so here it's array. Array is a linear data structure which holds a list of finite data elements of same data type. ठीक है, अगेन एरे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें फाइनाइट डेटा एलिमेंट्स होते हैं, मींस के फाइनाइट रेंज होती है डेटा एलिमेंट की, लेकिन किस टाइप का डेटा होता है, सेम टाइप का। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इंटीजर है तो इंटीजर, और यू कैन से दैट के
फ्लोट है तो फ्लोट, डबल है तो डबल, करेक्ट है तो करेक्ट है। ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज रेफरेंस बाय अ सेट ऑफ इंडेक्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। मींस के हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, उससे जो है वो यू कैन से दैट आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस इंडेक्स पे कौन सा ये कह सकते हैं कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, कौन सा जो है नंबर है, ठीक है। सो आई होप सो यहाँ तक जो है क्लियर होगा। द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस। जो एरे है हमारे पास, ठीक है, एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन में जो है स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि यू कैन हम कभी भी किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू जो है स्टोर कराते हैं, वो डेफिनेटली वो वेरिएबल जो है उसको जो है कंप्यूटर के कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। सो एरे में भी यही है, वो यही करता है कि जो इंडेक्स नंबर तो ये रिप्रेजेंट करता है किस इंडेक्स पे जो है हमारा एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन उसको कंप्यूटर की कोई भी मेमोरी लोकेशन अगर असाइन हो जाएगी तो वो जो है उसी को कंटिन्यू करेगा और वहां पे जो है यू कैन से दैट के अपनी अपना एड्रेस जो है फाइंड कर करके वहां पे जो है एलिमेंट्स स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। ये अभी मैं आगे चल के और इसको जो एक्सप्लेन करती हूँ दैट व्हाट इज बेसिकली मेमोरी लोकेशन एंड व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं, इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एंड वैल्यू जो है n-1 होती है उसकी, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 8 इंडेक्स हैं तो लास्ट आइटम हमारा 7 इंडेक्स पे होगा और स्टार्ट हमेशा 0 से होगा। मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मेक यूज ऑफ एरेज टू इम्प्लीमेंट दियर एल्गोरिथम। ज्यादातर एल्गोरिथम्स या कोडिंग में जो है हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को ही यूज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो यूज करता है वो एरेस को ही यूज करता है। क्यों करता है एरेस को यूज, इसकी रीजन जो है मैं अभी बताती हूँ। और इसके अलावा जो है मैं मेमोरी लोकेशन और जो है इंडेक्स को भी मैं आपको क्लियरिफाई करती हूँ कि व्हाट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी लोकेशन एंड इंडेक्स क्या है। क्यों सिर्फ ये याद रखना है कि जो है एरे इंडेक्स में तो सेव होता है, लेकिन उसके लिए भी हमें जो है कंप्यूटर की मेमोरीज की जो है नीड होती है। तो वो कंप्यूटर की जो मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है हमें असाइन हो जाती है, जो भी असाइन होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट किसी एक मेमोरी में होगा, सेकंड किसी और में, लेकिन जो है एक के बाद एक, और हर किसी की अपनी अपनी जगह जो है यू कैन से दैट स्पेस है। लाइक मैं एक चीज बता दूं कि स्ट्रिंग की फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग की तो नहीं लिखा हुआ मेरे पास अभी, करेक्टर की 1 बाइट है, डबल की 8 बाइट है, फ्लोट की 4 बाइट स्पेस है, मेमोरी लोकेशन और इंटीजर की 4 बाइट है। अभी मैं आगे चलती हूँ, मैं बताती हूँ इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम इसको डिस्कस कर लें। मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मेक यूज ऑफ एरेज टू इम्प्लीमेंट दियर एल्गोरिथम। मीन्स के एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर जो है ज्यादातर एरेज का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो एरेज प्रोवाइड डायरेक्ट एंड एफिशिएंट एक्सेस टू एनी एलिमेंट इन द कलेक्शन। इफ यू सी एरेज जो है यू कैन से दैट सिंगल रॉ में है, ठीक है। तो हम इजीली जो है किसी भी एलिमेंट को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। एरेज में क्या होता है, हम जो है सिंगल वैल्यू में जो है तमाम वैल्यूज को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कि हम बार बार उसको जो है असाइन कर रहे हैं। सिर्फ ये एक फॉल्ट है कि जो है सेम डेटा टाइप चाहिए होता है लेकिन एक ही वेरिएबल में जो है स्टोर हो सकता है। लाइक ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, मुझे अब ये नीड नहीं होगी ए में जो है 1 स्टोर कराऊं, बी में 2, सी में 3। ओके, एरेज कैन बी यूज टू स्टोर अ वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर एंड इवन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंटर्स। ये बाद में कभी पढ़ेंगे, अगर हमारी बुक में हुआ तो वी विल सी, वरना जो है बाद में कभी आप लोग पढ़ेंगे, या अगर मैंने इस पे कोई वीडियो बनाई तो आई विल लेट यू नो, ठीक है। एरेज जो है डिफरेंट जो है डेटा टाइप्स को जो है स्टोर कर सकता है, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड इवन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नाम बताया, ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंटर्स। बट ये है कि वन टाइम एक ही जो है डेटा टाइप को वो जो है एक्सेस करेगा। ओके, सो सिर्फ ये है तो इसकी आई होप सो की रीजन आप लोगों को पता चल गई होगी व्हाई मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मेक यूज ऑफ एरेज टू इम्प्लीमेंट दियर एल्गोरिथम।
तो ये अगर स्टेटमेंट अगर आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पे इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं, क्वेश्चन अगर आपने कर दिया है, ये भी स्टेटमेंट लिख इट्स ओके, यहाँ तक भी ओके है। लेकिन अगर 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 जो है, यू कैन से दैट इफ इन केस रीजन की फॉर्म में आ जाए, व्हाई मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मेक यूज ऑफ एरेज टू इम्प्लीमेंट देयर एल्गोरिथम, तो ये रीजन आप लिख सकते हैं पूरी की पूरी। ओके, सो आगे चलते हैं। नाउ जो मैंने कहा था इन माय प्रीवियस स्लाइड कि जो है आई विल लेट यू नो व्हाट इज बेसिकली इंडेक्स एंड मेमोरी लोकेशन। सो द टू टर्म्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एरे। फर्स्ट थिंग इज दैट एलिमेंट आर हियर इन दिस बॉक्स। एलिमेंट्स तो आप लोगों को पता चल गए होंगे, क्योंकि मैंने पीछे भी 2-3 स्लाइड्स पहले जो है एलिमेंट्स का बताया था। तो ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जो रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर फॉर्म में बॉक्स है, इसमें जो है जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं एरे में, जो भी आइटम है वो जो के एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। इंडेक्स, व्हाट इज बेसिकली इंडेक्स? ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। हर एलिमेंट की एक लोकेशन है, ठीक है, एरे में, जिसको जो है हमने न्यूमेरिकल वैल्यू से असाइन किया हुआ होता है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होती है, जो कि इंडेक्स कहलाई जाती है। जो कि व्हाई वी यूज इंडेक्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, ओके, टू ट्रेस एलिमेंट। ओके, सेट ऑफ इंडेक्स इन एन एरे आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। जो भी इंडेक्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी गैप, बट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इंडेक्स हमेशा जो है जब हम लिखते हैं इस तरीके से, तो इंडेक्स हम नीचे जो है लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 अप टिल सो ऑन, एन कर अप टिल सो ऑन, और जो लास्ट होता है वो होता है n-1। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं, 10 एलिमेंट्स का जो है एरे है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 10-1 इज 9। ओके, तो यहाँ पे जो है 9 6 7 8 9 आ रहा होगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला। सेकेंड थिंग इज दैट मेमोरी लोकेशन। हमने हमारा एलिमेंट एक एरे इंडेक्स तो इन में हो गया, ठीक है, इंडेक्स में असाइन हो गया। इंडेक्स में असाइन होने के बाद एरे का एलिमेंट एक मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे कि मैं कोई भी किसी भी वेरिएबल में जो है कोई भी नंबर स्टोर करा रही हूँ या कोई करेक्टर स्टोर करा रही हूँ, तो वो वेरिएबल जो है उस नंबर या उस करेक्टर को जो है कंप्यूटर की किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में जो है स्टोर करेगा। समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो है करेक्टर है UBFDAEC, ऑल आर करेक्टर, और करेक्टर की जो मेमोरी लोकेशन है, जो साइज है, वो 1 बाइट है। तो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर की जहाँ पे मुझे यू कैन से दैट के करेक्टर के एलिमेंट्स को जो है स्टोर कराना है, वो 200 से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने बताया करेक्टर का जो साइज है वो 1 बाइट है, तो वो 200 पे फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करेगा, फिर 1 के गैप के बाद 2000 201 पे बी, फिर 202 पे एफ, 203 पे डी, मीन्स के हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस करेक्टर की जगह यू कैन से दैट करेक्टर की जगह मेरे पास इंटीजर होता, अगर करेक्टर की जगह मेरे पास इंटीजर होता, वो मैं यहाँ पे बनाकर फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर होता, और इंटीजर में मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 नंबर्स हैं, ठीक है। यू कैन से दैट A is equal to 2 3 4 5. These are 4 number. This is index 0, index 1, index 1 पे 3, इंडेक्स 2 पे 4 एलिमेंट है, और इंडेक्स 3 पे 5 एलिमेंट है, ठीक है। दिस इज इंडेक्स, दिस इज एलिमेंट, आई एलिमेंट। अब ये इंडेक्स जो है इन तमाम एलिमेंट्स को कंप्यूटर की किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में जो स्टोर करेगा। अब स्टार्ट होता है 200 से,
ठीक है। मेमोरी लोकेशन का नंबर जो है, मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है इंटीजर के लिए 200 से, और इंटीजर की जो स्पेस है, जो इंटीजर का साइज जो है वो हमारे पास 4 बाइट्स है, 4 बाइट है। तो 200, 201, 202, 203, इसका मतलब 4 ब्लॉक्स छोड़ेगा, 1, 2, 3, 4। इस पूरे के पूरे 4 ब्लॉक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, ई। क्या आएगा, ई। मैं यहाँ पे जो है कलर चेंज करके लिख लेती हूँ, ई आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आई गेस नहीं दिख रहा, कोई मसला नहीं है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ अपना, ई आ गया। ठीक है, 203। अब उसके बाद जो है सारी स्पेस खाली नहीं जाएंगी। अब 204 से स्टार्ट होगा, 204, 205, 6, 7, 207 तक जो है हमारे पास आएगा 3। सॉरी, दिस इज नॉट ई, दिस इज 2। फिर 207, 8, 9, 10, 11, 211 तक हमारे पास आ जाएगा 4। फिर उसके 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 15 तक जो है हमारे पास 5 आएगा। मींस इंटीजर के लिए हम लोग 4 ब्लॉक्स, 4 जो है स्पेसेस ले रहे हैं मेमोरी लोकेशन के लिए, सही। और करेक्टर के लिए 1 1 स्पेस ले रहे थे, मेमोरी लोकेशन की डबल होगा तो 8 स्पेस लेंगे, 8 ब्लॉक्स लेंगे। जब फ्लोट होता तो तब भी हम जो है 4 स्पेस लेते। तो आई होप सो यहाँ तक जो है थोड़ा बहुत जो समझ में आया होगा, डिफरेंशिएट कर पाए होंगे व्हाट इज बेसिकली मेमोरी लोकेशन एंड व्हाट इज बेसिकली इंडेक्स। इंडेक्स जो है मेमोरी लोकेशन एलिमेंट्स का जो एड्रेस है, और इंडेक्स ही उन एलिमेंट्स को जो है कंप्यूटर की किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में जो है स्टोर करवाता है। अब उसके अलावा एरेज में कुछ चीजें हैं, वो ये है कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं लाइक traversal, search, insertion, deletion, and sorting can be performed on arrays. Okay, traversal means के आपको एक एक करके किसी भी जो है you can say that elements को जो है visit करना है, ठीक है। सर्च मीन्स आपको कहा जाए कि इंडेक्स 4 पे एक एलिमेंट है ई, उसको जाके देखो वो वहां है, मतलब कि उसको जाके सर्च कर लो। लाइक यू कैन से दैट इंडेक्स 4 को सर्च करो, वहां पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो इंडेक्स 4 पे सॉरी ए है, इंडेक्स 5 पे जो है ई है, ठीक है। तो ये चीज सर्च का काम ये होता है। नेक्स्ट इज दैट के डिलीशन, सॉरी इंसर्शन, इंसर्शन में ये होता है, ये कहा जाए कि इंडेक्स 6 पे तो सी है, लेकिन 7 पे जो है आप जाके क्या ऐड कर दो, कोई भी एलिमेंट 7 पे आप जाके ऐड कर दो, फॉर एग्जाम्पल जी कर दो, ऐड, इंसर्ट कर दो, ठीक है। या यूं कहा जाए एलिमेंट 4, सॉरी इंडेक्स 4 को रिप्लेस करो 5 से, मीन्स के जो 4 का एलिमेंट होगा वो चला जाएगा 5 पे, और जो इंडेक्स 5 का एलिमेंट होगा वो आ जाएगा 4 पे, मीन्स के इंसर्ट कर दिया, चेंज कर दी। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग इज अनदर थिंग। सॉर्टिंग मीन्स के आपने सॉर्ट करना है या तो इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिलीशन मतलब कि या तो आप डिलीट कर दो, कहा जाए कि इंडेक्स 6 पे आपके पास एक एलिमेंट है सी, उसको डिलीट कर दो तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। सो लाइक दिस। इसके अलावा एक चीज ये है कि एरे को हम 1D एरे कहते हैं, 1 डायमेंशनल एरे कहते हैं, बिकॉज ईच एलिमेंट इज रिफर्ड बाय 1 सबस्क्रिप्ट ओनली। इट मींस दैट 1D contains only single row and multiple columns and store data as a list. Okay. इसके अलावा एक चीज ये है कि हम क्रिएट कैसे करते हैं एरे इन एक्चुअली। तो हम एरे, टू क्रिएट एन एरे डिफाइन दैट डेटा टाइप लाइक इंटीजर। हमने डेटा टाइप जो है डिफाइन करना होता है कि कौन सी डेटा टाइप है। जैसे कि अभी हमने भी प्रीवियस एग्जांपल में देखा है, मैं वापस लेके चलूं, ये कैरेक्टर थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इंटीजर चाहिए, तो सबसे पहले मैं डेटा टाइप डिफाइन करूंगी कि क्या है मेरी, जैसे कि डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे। एरे का कोई ना कोई नेम होगा।
फिर ब्रैकेट में जो है लिखे जाएंगे मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लाइक इंटीजर माई नंबर्स, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, माई नंबर्स कितने चाहिए फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में हम जितने नंबर्स हमें चाहिए वो लिख लेंगे। टू इंसर्ट वैल्यूज टू इट यूज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, मींस के एरे का जो भी क्रिएट जो हम करते हैं एरे को, डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद हमने नेम कोई देना होता है एरे का, और उसके अलावा एरे के जो इंडेक्स हैं उसको हम बेसिकली कर्ली सॉरी नॉट कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखते हैं। इंडेक्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड होता है n-1 पे। indexes of element in an array starts from 0 but end on n-1, और उसको हम लिखते कैसे हैं, लिखने का भी तरीका है x या कोई भी वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखे जाते हैं, लाइक x of 0, x of 1, x of 2, like x of 0 is u, x of 1 is b, x of 2 is f, मीन्स के x वेरिएबल में जो है हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मीन्स क्यों कह सकते हैं कि x of 0 is u, x of 1, ये मीन्स के इंडेक्स लिखने का तरीका, x of 1 is b, ठीक है। इट मीन्स के x is equal to u b f d a e c, ठीक है, सही। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इक्वल टू से पहले मींस के हम स्क्वायर ब्रैकेट और उसका नेम, आपके एरे का नेम और जो है टाइप जो है हम यूज करते हैं, और स्क्वायर इक्वल टू के बाद जो है कर्ली ब्रैकेट में हमने जो है अपने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं विद दी यूज करना है, कॉमा करने, सेपरेटली लिखने हैं कॉमा यूज करते हुए, ठीक है। लाइक दिस इंटीजर डेटा टाइप माई नंबर्स एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल टू 25 50 75 100। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक जो है आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है हम जो है इंडेक्सेस को समझ सकते हैं, और इसके अलावा यू कैन से कि किस तरीके से हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन करने का जो है तरीका बताया है, एरे को क्रिएट करने का यहाँ पे नेचुरली जो है मैंने तरीका आप लोगों को जो है बताया है। सो आई होप सो यहाँ तक जो है ये चीजें जो है आप लोगों को क्लियर होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी सो यू विल comment your query anytime. I will try to respond then as soon as possible. Okay, and I don't think so इसमें अब कोई ऐसी चीज होगी जो कि मुझे अभी समझाने की कोई नीड होगी। Okay, just have a look, sorry, just wait, मैं ट्राई करती हूँ। एक एरे से रिलेटेड एक कोडिंग थी, वो अगर मुझे मिल जाती है अपने पास तो जो है मैं उसको सर्च करके दिखाती हूँ एरे को, ठीक है। सो जस्ट वेट, बी विद मी।
सो सॉरी फॉर वेटिंग। नाउ मैं ये दिखाना चाह रही थी कि हम किस तरीके से जो है सर्च कर सकते हैं इंडेक्स नंबर यूज करके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया अपना डेटा टाइप, देन मेरे एरे का नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा मुझे कितने मतलब के एलिमेंट्स चाहिए अपने एरे में। फॉर एग्जांपल 5 चाहिए, ठीक है। मैंने 5 एलिमेंट्स लिख दिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज कर देती हूँ। यू कैन से दैट के मैं यहाँ पे लिखती हूँ 88, 77, 95, 100 एंड 54, ठीक है। अब इसके करने का तरीका क्या है? std cout। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पे चेंज करनी थी, ये कि मैं यहाँ पे कर देती हूँ using namespace std, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ये तो हमने एरे को डिफाइन वगैरह कर लिया, क्रिएट कर ली एरे। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास डिस्प्ले होके आए इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 3 का एलिमेंट, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं पता इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, लेकिन मैं सर्च करना चाह रही हूँ, विजिट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो सी आउट बेसिकली प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में जो है बेसिकली डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। मैंने लिखा माई नंबर्स, क्योंकि मेरा एरे का नाम जो है माई नंबर्स है। माई नंबर्स इंडेक्स नंबर 3। तो रन करूंगी तो किसी इंडेक्स नंबर सॉरी नॉट यस इंडेक्स नंबर 3 पे मेरे पास 1 2 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर 3 पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट है? 100, ठीक है। इंडेक्स नंबर अगर मैं 4 बोलूं, वैसे तो वो 5th पोजीशन होगी। मेरे पास कौन सा है? 54 एलिमेंट, ठीक है। अगर मुझे करेक्टर चाहिए होगा मैं इसको करेक्टर से करूंगी, ओके। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे करेक्टर ही यूज करूंगी, लाइक A B C D E, ओके। तो मुझे फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 0 पे देखना है, तो अच्छा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहरहाल यहाँ तक तो ठीक है कि इंटीजर को तो ये अभी ले रहा है, सो डेफिनेटली ये जो है थोड़ा बहुत अभी करेगा, क्योंकि मैंने ये ज़्यादा जो है लिंक यूज़ नहीं किया, ठीक है। सो 44, 55, 66, 77 एंड 99। तो अगेन इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है? 44 है। तो इस तरीके से ये सर्च हो सकता है। ये जो मैंने लास्ट में एग्जांपल दी थी ये उससे रिलेटेड है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ओके। सो बैक टू पीपीटी, ओके। सो जो भी ये क्रिएशन थी मैंने ये वहां पे करके दिखाई और सर्च भी करके दिखाया कि इंडेक्स पे जो है कौन सा एलिमेंट है, वो भी हमें प्रूव हो गया होगा। करेक्टर अभी नहीं ले रहा है। आई विल ट्राई टू work on that and let you know in some other video, okay. So I hope so यहाँ तक जो है clear होगा। In this video we have deeply discussed linear data structure in detail, okay. And there are 3 types of linear data structure, not 3 4: linked list, queues, stack and array. And in your textbook linked list are not included, but I will try। कभी मैंने linked list से related जो है कोई video upload की तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के जो है काम ही आएगी, okay. So next is, thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone and hit like button and press bell icon, and don't forget to share my channel with your family, friends and in your circle. So thank you once again. Allah Hafiz.